searching a general manager for our Dhanbad property. Okay, sir. Also, I am looking for a general manager in Yes. Mumbai and one general manager in Goa. So I Okay. have three vacancies for general manager, and I will be having a short conversation with you. Record this conversation and send this video recording to three owners. So whoever might interested talking to you, we can take second round Yes, of of course. interview. Okay. 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 In this interview, I would like to ask you 5 questions. Answer those 5 questions very calmly, मजे से, कोई उसमें Okay. नहीं है, एकदम टेंशन फ्री. ओके. Okay. Okay. मेरा पहला क्वेश्चन है, रेट योर सेल्फ 1:10 इन इंग्लिश स्पीकिंग. 6. 6. Okay. Then we will continue this conversation in English only. Okay. Okay. My second question to you is, how many year experience you have in hospitality industry, and how many year experience you as a general manager? My hospitality industry in experience 9 years, and as a general manager 2 years. Okay. What is your core subject in the hotel? Like, what is the very strong you are into, like housekeeping, service, engineering, revenue management, sales and marketing, which you are very strong into? My best to best core experience in core competitions like that है to general management, overall operation, and sales marketing, and uh, what's to correct required for a property to create many types of and many way to solve any solution for what. Okay. What is your present salary, and what is your present salary? My present salary like is 65K and in hand. Okay. And presently you are working as a what? Presently, I am working as an operation manager in Raipur. To I How manage. many rooms? Sorry, Okay, and you are working in Raipur. So how many rooms presently this property has? How many rooms, banquet hall? Tell something about this property. yes, of course. I explain overall. I manage two outlets and one hotel and one warehouse production team. How many rooms in this hotel? Rooms in 20. 20 rooms. Okay, what is the price of the room? Room का किराया कितना है? 2000. 2000 रुपीज का कस्टमर आता है. बार है वहां पर? बार? Sorry sir, बाहर नहीं है. बार नहीं है. दारू वारू पिलाते हो वहां पे लोगों को? No. दारू नहीं पिलाते. पार्टियां होती है, बैंकेट वगैरह होता है वहां पे? Yes, of course. ओके. यहाँ पर जहाँ पर अभी तुम काम कर रहे हो, वहां पर कितने साल से काम कर रहे हो? सर मैं अभी रिसेंटली 4 मंथ से काम कर रहा हूँ. और छोड़ना क्यों चाहते हो 4 महीने में ही? क्योंकि मैंने मेरे अंडर में सर चार चार आउटलेट है. जस्ट लाइक दो रेस्टोरेंट है जो 400 कवर कैपेसिटी है. आई मीन लाइक दैट 2 आउटलेट एंड वन होटल एंड one sweet bakery, restaurant, and banquet and catering based warehouse. Okay, sir. So overall manage overall operation and create SOP, operation, checklist, many types. मैं ये बोल रहा हूँ. But इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है कि एक, मेरा क्वेश्चन है कि नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो, ये बताओ बस. केवल क्या कर रहे हो वो नहीं पता करना. इसीलिए सर बता रहा हूँ कि एसओपी और मैनेजमेंट डेवलप करने के बाद भी ऑनर अग्री नहीं कर रहे हैं हमारे मैनेजमेंट को प्रोफेशनली वे से लेके चलने के लिए. मतलब ओनर बोल रहा है कि प्रोफेशनली मत चलो. नहीं, उनको पुराने स्टैंडर्ड से जो चल रहा था वही उसी में सेटिस्फाइड है सर. अच्छा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, नया कुछ मत करो. हाँ. हैं? हाँ.
अच्छा, तो तुम क्या, अच्छा मुझे एक एग्जांपल दो कि तुमने ऐसा क्या नया किया जो ओनर ने बोला कि भैया माफ कर दे। बस मैंने एसओपी डिजाइन किया टोटल मैनेजमेंट का। ओके। और मैंने फॉलो करने के लिए उनका जो रेवेन्यू था 88 लाख था। ओके। मैंने 1.5 करोड़ का प्लान दिया, पूरा बिजनेस फोरकास्ट बना के दिया एंड सब कुछ समझाया एक्सप्लेनली हमारी आरओआई। मान लीजिए अभी जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग 1 to 1.5 लाख डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड होने थे। ओके। एंड स्टाफ का ग्रूमिंग बेटर करना था। इसके बाद चेकलिस्ट फॉलो नहीं हो रहा था, चेकलिस्ट मैंने डेवलप किए। और इसके बाद सबसे बड़ी पॉइंट जो पेरोल है, वो पेरोल कैश में जैसे तैसे कर रहे थे, पेरोल को भी एचआर से कनेक्ट करके मैंने उसको डेवलप किया। तो इन सभी चीजों डेवलपमेंट के ऊपर उन्हें हर मंथ 2 लाख रुपए एक्सपेंस जो अभी तक नहीं लग रहा था वो लगेगा। इसके बाद खर्चा दो बता आउटलेट दिया, का। ठीक है मैं समझ गया, मतलब उसको खर्चा बता दिया कि भाई ये खर्चा करेंगे तो जी हाँ। स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हाँ, एक आइडिया है जो मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। 2 आउटलेट और 3 आउटलेट थे उनके होटल लेकर। तो तीनों का जो किचन मैनेजमेंट था वेरी वॉश था। ना कोई मैनेजमेंट, ना उसका पोर्शन का मैनेजमेंट, कुछ नहीं था। तो मैं किचन में भी मैं एक्सपर्ट हूँ कि एक एक चीज में कोर, जैसे कंसल्टेंट उस चीज को सेटअप करता है किचन को, मैं वैसे भी सेटअप करवाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने वहां भी उसको भी प्लान दिया पूरा कि सर ये तीनों आउटलेट का जो ग्रेवी मैनेजमेंट है ना वो वेयर हाउस में करते हैं, जिससे हमारा एक टेस्ट मैनेज हो पाएगा। मैंने वो भी सब कुछ एसओपी डिजाइन करके दिया। उसके बाद लोग डाइटेड सर कि सर हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है और अभी इसको यही चलने देते हैं। तो सर मेरा सवाल था कि अगर मेरे रहते अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो तो फिर मेरा क्या काम। आई विल लेफ्ट। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा मैं इनोवेटर हूँ, मैं इनोवेशन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, चाहे कैसी भी प्रॉपर्टी हो। मैं दम रखता हूँ कि उसको चाहे जितना भी रेवेन्यू हो, अगर मेरे काम करने के तरीके में अगर 6 मंथ भी हमने काम कर लिया ना, तो रेवेन्यू उसके एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेशन अगर 1 रहेगा तो मैं उसको 1.2x ले जा सकता हूँ, 1.3x ले जा सकता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करना हो या मेन्यू इंजीनियरिंग में काम करना हो या रूम ऑक्यूपेंसी को कैसे इंक्रीज करना है, कॉर्पोरेट डील कैसे करना है, वो सारे कुछ ऑल ओवर मैनेज मैनेज कर सकता हूँ। तो एक बिजनेस फोरकास्ट जो हम भी न्यू प्रॉपर्टी में जाते हैं, पहला नंबर 7 डेज का ऑब्जर्वेशन करते हैं और 7 डेज के बाद उसके लोकेलिटी एरिया को एनालिसिस करके, वहां की सेल एनालिसिस करके मैं एक बिजनेस फोरकास्ट बना के दे देता हूँ कि सर हम लोग इस बिजनेस फोरकास्ट पे चलेंगे, ये हमारा मार्केटिंग पे खर्च होगा, ऐसे हमारे ऑपरेशनल पे खर्च होगा। तो ये सारी चीजों करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तुम मुझे एक काम करो, ठीक है मैं समझ गया हूँ तुम्हारा पॉइंट, मैं समझ गया कि तुमने बेसिकली ज्वाइन करते ही तुमने क्या किया, उस ओनर को काफ़ी सारे सजेशंस देने चालू कर दिए और तुम्हारे हर सजेशन में कहीं ना कहीं ओनर को पैसा खर्च करना था, तो उसने कहा भाई रुक जा, थम जा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो मैं समझ गया नहीं हूँ। नहीं, हर हर सजेशन में नहीं। 15 डेज जब बीता तो उसके बाद मैंने एसओपी डिजाइन स्टार्ट किया, सब कुछ उनको 7 डेज में करके दिया। और मैंने ये भी बोला कि सर अगर आप इससे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप वही खर्च करिए, जैसे चल रहा है वैसे चलिए, लेकिन कम से कम किचन मैनेजमेंट और ग्रूमिंग बेटर कर दीजिए। तो वो भी एग्री नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, तो धनबाद के बारे में आप क्या जानते हो? तो धनबाद में मैं गया हूँ पहले काफी, वहाँ का मैंने मार्केट ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन 1 या 2 दिन मैंने गया था, वहाँ के देखा था। मार्केट थोड़ा सा लो है एज एक्सपेंड के मामले में, लेकिन हाँ बड़ी पार्टियां वहाँ अच्छी खासी मिलती है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम विजिट करते हो ऑफिस वगैरह में, जाके विजिट करते हो बिजनेस के लिए, हाँ बिजनेस यार लाने के लिए? यस, मैं दिल्ली गुड़गांव एनसीआर रीजन में था, तो मैं कॉर्पोरेट डीलिंग से लेके सोसाइटी डीलिंग से लेके ओवरऑल एज ए जीएम मैं खुद करता था ऑफिस में विजिट, और अपने रिलेशनशिप को इंक्रीज करता था, अपने आउटलेट को रेवेन्यू को मॉडल को बढ़ाने के लिए। तुम्हारे पास मैन पावर कितना है, मैन पावर कितना है? अगर जैसे होटल में कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा, 25-30 जने तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तो तुम स्टाफ कितना है तुम्हारे पास?
एट द टाइम 40 कर सकता हूँ। अच्छा 40 हाँ, चाहे 40 एक हाँ, एम्प्लॉयज तुम चेंज कर सकते हो अगर कोई तुमको चैलेंज करेगा तो अथॉरिटी को। ऑफ कोर्स। और मैनेजमेंट अगर जैसा तुमको बोलेगा वैसा इम्प्लीमेंट करा सकते हो, जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि यार ये करना है, ये अपने को हाँ, अपन कर सकते चाहते हैं। हैं ऐसा ऐसा हो जाए, तो तुम इम्प्लीमेंट करा सकते हो। आगे चैलेंजिंग मेथड से मैं कर सकता हूँ। ठीक है चलो, ओके, थैंक यू फॉर दिस मीटिंग विथ मी। मैं इस जो जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है मैं उसको तीनों होटल के ओनर्स को दे देता हूँ, और फिर ओके, देखता हूँ कि कहाँ से कौन इंटरेस्टेड है, और फिर दिवाली के बाद, क्योंकि मैं अभी थोड़ा हॉलीडेज पे चला जाऊँगा, तो या तो दिवाली के ओके, बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे, और या फिर अगर किसी ओनर ने आज या कल में ही मीटिंग किया तो मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट करूँगा कि कल या परसों में कोई मीटिंग हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। ऑफ कोर्स। और मैं अगर जो जिनको मेरा काम करने के तरीके और मेरे जो इंटरव्यू पसंद आए, अगर वो कहेंगे कि नहीं मुझे इमीडिएटली ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, मुझको तुम एक काम करो, पहले तो मैं तुम्हारा ये जो मैंने अभी जो अपना रिकॉर्ड किया है इसको मैं ओनर्स को भेज देता हूँ। दूसरा, अगर वहाँ ठीक से है। कोई भी अगर मेरे पास आंसर आता है तो मुझे अपने जो भी एक तो 4 महीने के बैंक अकाउंट, तुम्हारा सैलरी ओके, जो डिपॉजिट होता है 65,000 रुपीज़, उसका मुझे प्रूफ चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, और पास्ट 2 जगह जहाँ तुमने काम किया है जो तुमने सीवी में किया है उसका अपॉइंटमेंट लेटर, और प्लस उसका रिलीविंग लेटर या सैलरी स्लिप, ऐसा कुछ मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, और फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है। ओके सर। कैन यू सर 1 मिनट